5ই আগস্ট দুপুর বেলা আমি যখন জোহরের নামাজের তাহরিমে বাঁধবো, আল্লাহু আকবার বলবো, মসজিদে ইকামত চলতেছে, কদ কামাতিস সালাহ হয়ে গেছে, ওই সময় আমার মোবাইলে রিংটোন বেজে উঠলো। আর 2-3 সেকেন্ড কথা বলার সময় আছে। গুরুত্বপূর্ণ ফোন দেখে আমি রিসিভ করলাম। বলল তাড়াতাড়ি সেনা আপনারা এই ক্যান্টনমেন্টে আসেন, সেনা প্রধান কথা বলবে, পরামর্শ করবে। আমি বললাম নামাজে দাঁড়াইতেছি, নামাজের পর, এর আগে সেনা প্রধান হোক আর যেই হোক, কথা কওয়ার টাইম নেই আমাদের। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बांग्लादेश के फेमस मजहबी स्कॉलर ममूनुल हक। उन्होंने यहाँ पे बताया कि शेख हसीना के जो फाइनल आवर्स थे उनमें शेख हसीना ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ को कॉल की और शेख हसीना ने क्या बातें की और ममूनुल हक ने ये सब कुछ यहाँ पे बयान किया है, और इसके बारे में मज़ीद डिटेल जानते हैं आज की इस वीडियो में। 5ই আগস্ট দুপুর বেলা আমি যখন জোহরের নামাজের তাহরিমে বাঁধবো, আল্লাহু আকবার বলবো, মসজিদে ইকামত চলতেছে, কদ কামাতিস সালাহ হয়ে গেছে, ওই সময় আমার মোবাইলে রিংটোন বেজে উঠলো। আর 2-3 সেকেন্ড কথা বলার সময় আছে। গুরুত্বপূর্ণ ফোন দেখে আমি রিসিভ করলাম। বলল তাড়াতাড়ি সেনা আপনারা এই ক্যান্টনমেন্টে আসেন, সেনা প্রধান কথা বলবে, পরামর্শ করবে। আমি বললাম নামাজে দাঁড়াইতেছি, নামাজের পর, এর আগে সেনা প্রধান হোক আর যেই হোক, কথা কওয়ার টাইম নেই আমাদের। নামাজ পড়লাম, নামাজের পরে আবার ফোন আসলো, লম্বা ইতিহাস। বলল তাড়াতাড়ি আসেন, আপনাদের সাথে পরামর্শ ক্রমে দেশের এই অচল অবস্থা নিরসনে মাননীয় সেনা প্রধান তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। গেলাম ঢাকা সেনানিবাসে সেনা সদরে, সেনা কর্মকর্তার যে অফিস, সেনা প্রধানের যে অফিস, সেখানে গেলাম। সেখান থেকে কাজ সারতে সারতে আসরের নামাজ হয়ে গেছে। তিনি সেনা প্রধান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। স্বৈরাচারী সেই জালিম ফেসিবাদ পদত্যাগ করেছেন এবং দেশ একটি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হবে। আমরা রওনা করলাম সেনা সদরের অফিস থেকে বঙ্গভবনের উদ্দেশ্যে। ঢাকার সেনানিবাস থেকে মাত্র বের হয়েছি। এই জাহাঙ্গীর গেট বলে, জাহাঙ্গীর গেট থেকে বিজয় সরণি, মধ্যখানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। খুব বেশি হলে আধা কিলোমিটার বা 1 কিলোমিটার হবে। এই 1 কিলোমিটার পথ চলতে চলতে যখন আমরা এই বিজয় সরণিতে এসে পৌঁছলাম, সেই বিজয় সরণিতে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বিশাল এক মূর্তি তৈরি করা ছিল। বিশাল মূর্তি, মাথা উঁচু করে তাকাইতে গেলে টুপি পরে যাওয়ার অবস্থা। এত উঁচা মূর্তি, এত বড় দেবতা, হুবলের চেয়েও বড়। এই মূর্তি এত শক্তিশালী, মজবুত ভাবে বানিয়েছে, কিন্তু কোত্থেকে যেন মুসলমানদের সৈনিক দল এসে ওখানে হাজির। হাতুড়ি, বাটাল, শাবল যা যা আছে সব এনে এই মূর্তির ঠ্যাং, কেউ ঠ্যাং ভাঙা শুরু করছে, কেউ ঘাড়ের মধ্যে বাড়ি দেওয়া শুরু করেছে। ঘাড়ের মধ্যে আবার গলার মধ্যে দেখি এক দল এসে রশি বাঁধছে। আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম যে সেনা প্রধানের অফিস থেকে বের হয়ে 2 কিলোমিটার রাস্তা আমরা এই বিজয় সরণি পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারলাম না। এই সকল মানুষগুলো কোত্থেকে আসলো? মনে হয় যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমান থেকে ফেরেশতা নাজিল হয়ে আসছে। ফেরেশতা ছিল না, কিন্তু এদের কার্যকলাপটা ফেরেশতার মতোই ছিল। এরা ওই কাজই করেছে যে এই কাজ আল্লাহর ফেরেশতারা এসে করে। এইভাবে ভাঙতেছে মূর্তি। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম ইয়া মোটা রশি নিয়ে আসছে, চিকন রশি দিয়ে গলায় পেঁচায় মানায় না। এটাকে এত বড় দেবতা, এই দেবতার গলায় পাতলা রশি মানায় না, ইয়া মোটা রশি বানায় নিয়ে আসছে। এটার ভিতরে যে রড, এত মোটা মোটা রড, 10 তলা 20 তলা মানে হাই রাইজ বিল্ডিং গুলো যে বানায়, সেই রড দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই বিশাল দেবতাকে। সেই দেবতার রড ভাঙার জন্য, পায়ের রক কাটার জন্য এরকম ভাবে এই হাতুড়ি বাটাল দিয়ে তো হয় না। পরে কোত্থেকে যেন এরা হ্যাকসো ব্লেড নিয়ে আসছে। হ্যাকসো ব্লেড দিয়ে কাটতে 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 সন্ধ্যা পর্যন্ত গড়াইছে। তারপরে বিশাল এই হুবলের মূর্তি এটা ভূপাতিত করে আল্লাহু আকবারের স্লোগানে গোটা ঢাকার জমিন প্রকম্পিত হয়ে গিয়েছে। এইভাবে মাগরিবের আগে সারা বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত মুসলিম জনপদ
জাতীয় সম্পদে নির্মিত অবৈধ এই মূর্তিগুলোকে অপসারণ করে এদেশের মানুষ 5ই আগস্টের বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। এই বিপ্লব হলো তাওহীদের বিপ্লব। जी, तो ये थी आज की वीडियो। बांग्लादेश के फेमस मजहबी स्कॉलर ममूनुल हक, उन्होंने बताया कि जब शेख हसीना की सरकार जाने वाली थी और बांग्लादेश में प्रोटेस्टर ने उनके घर का रुख किया तो उन्होंने और आर्मी चीफ़ को कॉल की और आर्मी चीफ़ को ये बोला कि लोगों के ऊपर जितना जुल्म किया जा सकता है करो और इनको मेरे घर तक पहुंचने से रोको। लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ़ ने क्लियर जवाब दिया कि किसी सूरत हम अपने शहरियों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और उन्होंने एक अच्छे बांग्लादेश की बुनियाद यहाँ पे रखी और शेख हसीना को बिलाखर जाना पड़ा। लेकिन शेख हसीना किसी सूरत बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के तौर पे रिज़ाइन नहीं करना चाहती थी और वो चाहती थी किसी भी सूरत ताकत के ज़ोर पे स्टूडेंट्स को कुचल दिया जाए, बांग्लादेश के शहरियों को कुचल दिया जाए। और उनकी जानिब से बांग्लादेश के शहरियों को रज़ाकार बोला गया। रज़ाकार वो थे 1971 की वार में जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था और शेख हसीना ने स्टूडेंट्स को रज़ाकार बोला और स्टूडेंट्स को गाली दी क्योंकि वो बांग्लादेश के शहरी हैं और बांग्लादेश को उतना ही प्यार करते हैं जितना शेख हसीना क्लेम करती थी कि वो करती हैं। और शेख हसीना ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी तरह लोगों को कुचल दिया जाए और उनको गोलियां मार दी जाएं, टैंक्स उनके ऊपर से चढ़ा दिए जाएं। लेकिन जिस तरह ममूनुल हक ने बताया कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ़ ने नमाज़ पढ़ी और उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि शेख हसीना से रिज़ाइन लिया जाएगा और शेख हसीना को बहुत कम टाइम दिया गया रिज़ाइन के लिए और उनको वहाँ से दुम दबा के भागना पड़ा। और बांग्लादेश के जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, बांग्लादेश की जो आवाम है वो बांग्लादेश आर्मी के साथ है और वो बांग्लादेश आर्मी की इज़्ज़त करते हैं। और क्योंकि उन्होंने शेख हसीना के ऑर्डर्स को नहीं माना तो इस वजह से बांग्लादेश के शहरी ये मानते हैं कि बांग्लादेश आर्मी उनसे प्यार करती है और बांग्लादेश के फ्यूचर की जो फ़िक्र है बांग्लादेश आर्मी को वो भी नज़र आ रही है। डॉक्टर यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश आर्मी के कहने पे नहीं यहाँ पे आई, वो बांग्लादेश की जो स्टूडेंट्स थे उनकी राय से डॉक्टर यूनुस को बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और अब बांग्लादेश की आर्मी और डॉक्टर यूनुस की जो सरकार है बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। बांग्लादेश के अंदर से करप्शन को ख़त्म किया जा रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। और आए दिन न्यूज़ में हम देखते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश आर्मी अपनी मजिस्ट्रेट्स की जो पावर है उनको यूज़ कर रही है और बांग्लादेश के अंदर से क्राइम का ख़ात्मा किया जा रहा है। तो जितने भी हुक्मरान हैं शेख हसीना की तरह अपने लोगों पे जुल्म करते हैं उनके लिए ये मैसेज है। और बांग्लादेश की आर्मी ने जिस तरह अपने शहरियों का साथ दिया है, हर आर्मी को इस तरह अपने शहरियों का साथ देना चाहिए। और बांग्लादेश के शहरियों ने शेख हसीना को रिज़ाइन पे मजबूर किया और वहाँ से भागने पे मजबूर किया और बांग्लादेश की आर्मी ने उनका साथ दिया। अदरवाइज़ बांग्लादेश के जो लोग हैं वो आर्मी के भी ख़िलाफ़ हो जाते और किसी भी मुल्क की आर्मी के जब शहरी उसके ख़िलाफ़ हो जाएं तो वो आर्मी किसी सूरत सर्वाइव नहीं कर सकती और उस मुल्क का जो फ्यूचर होता है वो दाव पे लग जाता। आप क्या सोचते हैं? ममूनुल हक ने जो बातें की उसके बारे में वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।